শ্ৰমিক ৰাইজৰ বাবে, পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো আমাৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। কাৰণ সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকে যাতে আগন্তুক দিনত এই পৰিৱৰ্তনৰ যোগেদি শক্তিশালী ৰূপত গা কৰি উঠিব পাৰে আৰু অসমৰ যিটো ঐতিহ্য আছে, যিটো সভ্যতা সংস্কৃতি আছে, এই সভ্যতা সংস্কৃতি আৰু সম্পদ সম্ভাৱনাৰ ভিত্তিত আগন্তুক দিনত আমি অসমৰ যুৱ সমাজক দক্ষ যোগ্য কৰি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন কৰ্মপথাৰত যাতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো এখন বিদেশীমুক্ত অসম গঢ়াৰ নিমিত্তে, যিখন অসমত কেৱল অসমীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ দখলীস্বত্ব থাকিব, যিখন অসমত কেৱল অসমীয়াৰ ৰাজত্ব থাকিব, কোনো অবৈধ বিদেশীৰ স্বচ্ছচায়ত অসমীয়া জাতি পৰিচালিত হ'বলৈ প্ৰস্তুত নহয়। পৰমশ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি এইখন অসমত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই দুখীয়া মানুহৰ বেদনা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিলে। মই কেইবাখন ঠাইতো গৈ পেলাই গম পালো যে এইখন চৰকাৰৰ দিনত বোলে যি আই ঘৰ চেংচন হৈছিল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত অৱস্থান কৰা লোকৰ বাবে, সেই আই ঘৰৰ পৰাও বোলে এইখন চৰকাৰে টকা পইচা বিচাৰে, 20,000 টকা বিচাৰে এটা আই ঘৰৰ নামত। গতিকে যিখন চৰকাৰে দুখীয়া মানুহৰ তেজ পুহি খায়, সেই চৰকাৰে, সেই দলে কেতিয়াও অসমৰ ৰাইজক, কোনো সমাজক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে। গতিকে আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছক আপোনালোকে ধাৰাসাৰি কৰক। কংগ্ৰেছ কোনো যুক্তিতে অসমীয়া জাতিৰ শুভাকাংক্ষী নহয় আৰু কোনোদিনে নাছিল আৰু ভৱিষ্যতে হ'বও নোৱাৰে। গতিকে সেইবাবে আমি নতুনত্ব বিচাৰো, আমি সবল হ'ব বিচাৰো, অসমীয়া মানুহ পিছ পৰি থাকিব বিচৰা নাই। আজি 21শ শতিকাত বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত আমি এই প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ আমি শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছো। লোকমৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে কোৱাৰ দৰে বিশ্ববিজয়ী নজোৱান অসমৰ যুৱকসকলে তেনেধৰণৰ শক্তিশালী মন তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, আদান পুৰুষৰ আদৰ্শৰে আগন্তুক দিনত বিশ্বৰ বুকুত আমি আগুৱাই যাব লাগিব। বীৰ লাচিত, বীৰ চিলাৰায় আৰু বাক হাজৰিকাৰ আদৰ্শৰে বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে বীৰ বিক্ৰমে যুদ্ধ দি আমাৰ মাটি, আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব। গতিকে পৰমশ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই বিশ্বাস ৰাখিছো আগন্তুক দিনত তেনেধৰণৰ এখন শক্তিশালী অসম গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে আপোনালোক সকলোৱে দলে বলে আগুৱাই আহিব। আৰু অহা 11 এপ্ৰিল তাৰিখে মনত ৰাখিব ৰাইজ, 11 এপ্ৰিল তাৰিখে আপোনালোক সকলোৱে কোনে ঘৰত বহি নাথাকিব। শতকৰা 100% লোকে জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰিবৰ নিমিত্তে পৰিৱৰ্তনৰ হকে আপোনালোকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সেইটো আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ বিনম্ৰ প্ৰাৰ্থনা থাকিল, অনুৰোধ থাকিল ৰাইজ। কাৰণ আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত যদি শক্তিৰ এটা প্ৰদৰ্শন কৰে, গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, নিশ্চিতভাৱে অসম সদায় আমাৰ হাততেই ৰক্ষা পৰিব, আমাৰ হাততেই থাকিব, অসমীয়াৰ হাততেই অসম নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব, কোনো অবৈধ বিদেশীৰ হাতত নহয়। গতিকে সেইবাবে মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে আগন্তুক দিনত সেইখিনি কথা আপোনালোকে গভীৰভাৱে মনত ৰাখিব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে যোৱাকালি নিৰ্বাচনৰ পৰা এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে যে অসমৰ ৰাইজে, উঠি অহা প্ৰজন্মই এটি শক্তিশালী উন্নত ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ কৰাৰ নিমিত্তে ইতিমধ্যে উঠি পৰি লাগিছে। মই অসমৰ ভোটদাতা ৰাইজৰ চিলেকশ্যনত গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। সঁচাই মই অভিভূত হৈছো যে অসমৰ ৰাইজে কেনেধৰণৰ এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আগন্তুক 11 তাৰিখে যিটো যোৱাকালি 80%তকৈ অধিক ভোটদাতা ৰাইজে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস 11 এপ্ৰিল তাৰিখে অসমৰ ভৱিষ্যত শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত, অসমখনক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰি আপোনালোকে সকলোৱে শতকৰা 100% লোকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোকে কৰিবনে ৰাইজ? কৰিবনে ৰাইজ? কৰিবনে ৰাইজ? কৰিব লাগিব। আমি সকলোৱে অসমখন ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আমাৰ অসম, আমাৰ মাটি, আমাৰ অধিকাৰ, আমাৰ অসম আমি ৰাখিম জাতিৰ স্বাভিমান। গতিকে এই লক্ষ্যৰে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কৰিব। তাকেই কামনা কৰি নলবাৰীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি বিশেষ অনুৰোধ যে পৰমশ্ৰদ্ধা ৰাইজ, অচ্যুত শৰ্মা এগৰাকী বলিষ্ঠ যুৱ নেতা, সৎ আৰু নিষ্ঠবান। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিয়ক অচ্যুত শৰ্মা সন্মুখত। মই অচ্যুত শৰ্মা হৈ আপোনালোক সকলোৱে শ্ৰী চৰণৰ মূৰ ধুৱাইছো, আশীৰ্বাদ দিয়ক ৰাইজ। আপোনালোকৰ সন্তান
अशोक शर्मा जिंदाबाद, अशोक शर्मा जिंदाबाद, अशोक शर्मा जिंदाबाद। ধন্যবাদ রাইজ, আপোনালোকে অশোক শৰ্মাক নিজৰ পুত্ৰ হিচাপে জ্ঞান কৰি আশীৰ্বাদ দিলে, তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ। জয় অসম। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। এতিয়া আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া নলবাৰী জিলা সমিতিৰ পৰা সম্ভাষণ জনাম। তেখেতৰ এখন চূড়ান্ত মতে আগামীকালৰ পৰা আমাৰ প্ৰাৰ্থী মাননীয় অশোক কুমাৰ চৌকালৈ লগতে তেখেতৰ চূড়ান্ত পাতিলে আগামীকালৰ পৰা আমাৰ এই সভাৰ ইনচাৰ্জ অভিজ্ঞতা ডাঙৰীয়াই আৰু লগতে সুমন ভালা আগামীকালৰ পৰা আমাৰ জিলাৰ সকলো ৰাজ্যলৈ भारत माता की। अरे ऐसे नहीं, राहुल गांधी जी को दिल्ली में सुनाई पड़ना चाहिए, नलबारी में भाजपा वाले खड़े हुए हैं। बोलेंगे जोर से, बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आसाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भैया इसको थोड़ा कम करो, श्रीमान सर्वानंद सोनोवाल जी, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और यहां के लोकप्रिय सांसद श्रीमान रमन डेका जी, असम भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी, यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अशोक शर्मा जी, यहां के अभी के विधायक श्री जयंत मल बरुआ जी, एजीपी की बड़ी नेता और जिनके पति ने एक शहादत दी थी, ऐसी एजीपी की नेत्री श्रीमती अलका शर्मा जी, श्री धीरेन्द्र बर्मन जी, श्री नगेन डेका जी, और आज इस आम सभा में उपस्थित प्यारे माताओं, भाई और बहनों, सबसे पहले तो जब मैं यहां नलबारी में मेरा हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, तब आसमान देखकर लगता था कि आपके दर्शन नहीं होंगे, मगर यहां आकर इतनी बारिश में सर पर कुर्सी रखकर आपने भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद के लिए जो श्रद्धा दिखाई है, इसको मैं हमारे गठबंधन की ओर से शीश झुकाकर नमन करना चाहता हूं। आसाम में चुनाव का 1 अप्रैल का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को है और 11 तारीख को तय हो जाएगा कि आने वाले 5 साल के अंदर आसाम की सत्ता, आसाम की सरकार किस पार्टी के हाथ में होगी,
किसी व्यक्ति के हाथ में। मित्रों, मैं आसाम में घूमा हूं, मैंने यहां का माहौल देखा है। इस बार आसाम के अंदर परिवर्तन का माहौल है। भाजपा असम गण परिषद की सरकार बनने वाली। भूपेंद्र यहां के बहुत बड़े कवि थे। भूपेन हजारिका को पूरा देश सम्मान करता है। उनकी एक कविता है, उसकी 2 पंक्तियां हैं। वो कहते हैं, बिहू में नदी में स्नान करिए और पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लीजिए। ये आपका जो काउंटिंग आने वाला है वो बिहू के बाद आने वाला है। मैं यहां अपील करने आया हूं, पुरानी सरकार उखाड़ कर फेंक लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और गण परिषद की सरकार बनाइए। मित्रों, आसाम गण परिषद के थोड़े सालों को छोड़ दीजिए तो आजादी से आज तक पूरा समय आसाम के अंदर कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस का शासन रहा है। और अभी सोनिया जी आई थी, वो कहती थी कि नरेंद्र भाई 2 साल के शासन का हिसाब दो। अरे सोनिया मैडम, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, असम की विधानसभा का चुनाव है। जब हम 2019 में आएंगे तो हमें मिले हुए एक वोट का हिसाब लेकर आएंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अभी 15 साल से ये आसाम की जनता ने आपको शासन दिया था। 10 साल तक आसाम का सांसद देश का मुख्यमंत्री बना। मैडम सोनिया, ये 15 साल का हिसाब आसाम की जनता आपसे मांगती है, वो पहले दीजिए। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूं आपको, आप सबके गांव में, आप सबके घर में 24 घंटा बिजली आती है क्या? बताइए, आती है? शुद्ध पीने का पानी आसाम के हर घर में पहुंचा है? आसामी युवा को रोजगारी मिली है क्या? मिली है? हर गांव रोड से जुड़ चुका है क्या? हर गांव के अंदर अस्पताल बना है क्या? बना है? हर गांव के अंदर सुरक्षा पहुंची है क्या? पहुंची है? मैडम, हमारा हिसाब क्या मांगती है? 15 साल तक आपने यहां शासन किया, आसाम में विकास क्यों नहीं हुआ? इसका हिसाब मैं आपके पास मांगता हूं। मित्रों, मैं मांगता हूं। और देखना है शासन कैसा होता है तो जाकर देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम अब होने वाला है। हरियाणा, झारखंड, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां ये सब सुविधाएं हो गई है। मित्रों, कांग्रेस ने 15 साल तक विकास का कोई काम नहीं किया। एक को दूसरे के साथ लड़ाने का काम किया और कोई विकास नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, ए फॉर आसाम। एबीसीडी में एक कहां आता है भी बताओ? सबसे पहले आता है ना? जरा जोर से बोलो, आता है ना सबसे पहले? तो ए फॉर आसाम का मतलब है भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य आसाम बनाने के लिए भाजपा सरकार। क्या नहीं है आसाम में? इस धरती के अंदर इतना खनिज पड़ा है, इतना तेल पड़ा है, मेहनत का युवा है, प्रतिभावान युवा है, सालों पुरानी संस्कृति है। कला के क्षेत्र के लिए आसाम को अगर मंच दे दिया जाए तो दुनिया भर के लोग आसाम की कला को देखने के लिए यहां आ सकते हैं।
नलबाड़ी के मंचन को, नाट्य कला को पुनर्जीवित करने की कांग्रेस को नहीं पड़ी है। पूरा दुनिया भर के टूरिस्टों को आकर्षित करने का प्राकृतिक सौंदर्य आसाम को ईश्वर ने दिया है, मगर टूरिज्म नहीं बढ़ता है। आपका एक सिंह वाला गहरा देखने के लिए पूरी दुनिया यहां आ सकती है, मगर कैसे दिखेगी? 3 साल में 90 गहने गोगाई जी के राज में मार दिए गए, मित्रों, मार दिए गए। कहां से विकास होगा? कांग्रेस विकास कर नहीं सकती। अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बोडो की सरकार चाहिए। मित्रों, ये सरकार आसाम का भविष्य बदल सकती है। और असम की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो बांग्लादेशी पूछते हैं। हम बहुत छोटे से बच्चे थे, तब विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में बोलते थे, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी। हम तो ये संस्कार निकल रहे। और कांग्रेस ने क्या किया? बांग्लादेश की सीमाओं को खुला छोड़ दिया। वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आसाम में घुसने दिया और आसाम के युवा का रोजगार आज बांग्लादेशी घुसपैठी हड़प कर रहे हैं। आसाम की संस्कृति को वो दूषित कर रहे हैं। मित्रों, आप मानते हो कि तरुण गोगाई और सोनिया की एक जोड़ी बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोक सकती है? बताइए, मानते हो आप मानते हैं? वो नहीं कर सकते। अगर वो करना चाहते होते तो 50 साल में कर दिया होता। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहां सर्वानंद की सरकार बना दीजिए। सर्वानंद की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो क्या, बांग्लादेश का परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। ऐसी हम ऑर्डर कोशिश करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आसाम को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करती है। 50 साल में इन कांग्रेसियों ने इतना भ्रष्टाचार किया है और विशेषकर 15 साल में इतना भ्रष्टाचार किया है कि आसाम का विकास रुक गया है। मैं पूछना चाहता हूं, जो अरबों खरबों रुपया दिल्ली से आता है, कहां गया वो रुपया? बताओ, आपके पास हिसाब है भाई, कहां गया यह हिसाब? मैं बताता हूं आपको, एड्रेस चाहिए, रुपया कहां गया? चाहिए एड्रेस? बताओ। आपके गांव में कोई कांग्रेसी का घर देख लीजिएगा और याद करिएगा, अरे सुनो अभी, 15 साल पहले वो कांग्रेसी का घर कैसा था? टीन के पत्ते और बांस की बल्लियों का घर होगा। और आज का घर देखिएगा, आलीशान पक्का महल बन गया होगा। ये पैसा वहां गया है। 15 साल पहले आपके गांव के कांग्रेसी कार्यकर्ता को देखिएगा, उसके घर के सामने एक टूटी फूटी हर रोज पंचर हो जाए ऐसी साइकिल पड़ी थी। और आज दिल्ली से लेटेस्ट नंबर वाली एक अफलातून गाड़ी पड़ी हुई दिखाई देगी। मित्रों, ये पैसा वहां गया है। 50% से ज्यादा योजनाओं का कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक गोगाई साहब नहीं दे सके हैं, क्योंकि योजना पूरी ही नहीं हुई है, योजना कंप्लीट ही नहीं हुई है। कंप्लीट कैसे होगी? पैसा तो चला गया कांग्रेसियों के घर में। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी गण परिषद और बीपीएफ की सरकार लाइए, वहां से 1 रुपया आएगा, हम 1.25 रुपया कर आसाम के गांव और गरीब तक पहुंचाएंगे। मित्रों, अभी मैं देख रहा हूं, एक नूरा कुश्ती देख रहा हूं। नूरा कुश्ती अब बहुत देखने नहीं मिलती है, पढ़ाई लिखाई में आती है, मगर हर रोज आसाम के अखबार देखिए तो नूरा कुश्ती दिखाई देती है। गोगाई साहब और अजमल साहब दोनों एक दूसरे के सामने निवेदन दे रहे हैं। आप लोगों के पास दूरबीन नहीं होगा दूरबीन? अगर दूरबीन होता
और उसको लगाते तो हर रोज एक दूसरे के सामने माइक में एक दूसरे का विरोध करने वाले दोनों नेता रात को गुवाहाटी में इलू इलू करते नजर आते हैं। अब मुझे बताइए भाई, कल जो मतदान हुआ है उसमें तय हो गया है कि कांग्रेस की पूर्ण सरकार नहीं बनने वाली है, तय हो चुका है। और अगर कांग्रेस को कम सीटें पड़ी तो वो भाजपा का समर्थन करेंगे क्या? करेंगे? कर सकते हैं? किसका समर्थन करेंगे बताइए भैया, किसका करेंगे? एक ताला चाबी का करेंगे। अब चाहते हैं बदरुद्दीन अजमल इस आसाम के मुख्यमंत्री बने। अब चाहते हैं मित्रों, बदरुद्दीन अजमल को कांग्रेस नहीं रोक सकती, भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हम 50 साल तक विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, मगर बदरुद्दीन अजमल का समर्थन लेकर आसाम की जनता का द्रोह नहीं कर सकते हैं मित्रों, नहीं कर सकते। एक बार इस सरहदी राज्य के अंदर, ये महान सांस्कृतिक विरासत वाले राज्य के अंदर, ये शहीदों के राज्य के अंदर राष्ट्रभक्तों की सरकार बना दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम आसाम को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मित्रों, नरेंद्र भाई बहुत कुछ करना चाहते हैं आसाम के लिए। हम चाहते हैं कि आसाम का युवा यहां से दुनिया के युवा के साथ स्पर्धा करे, आईटी का एक्सपर्ट बने, मगर एक सरकार ऐसी चाहिए जो नरेंद्र भाई को काम कर दे। आप बताइए, नरेंद्र भाई का समर्थन करे ऐसी सरकार लाएंगे? जरा जोर से बोले, लाएंगे? हमारे भाई सर्वानंद को मुख्यमंत्री बनाएंगे? भाई अशोक शर्मा को विधायक बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? देखो भाई, बटन तो जरूर दबाना, मगर इतनी जोर से दबाना कि बटन यहां नलबारी में दबे और इसका करंट इटाली में जाकर लगे। दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, हवा में हाथ खड़ा कर मुट्ठी भीग कर जोर से आक्रोश से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।